Once again, a very good morning to you all. I hope you all are doing well. So, again, we will be continuing with CS, that is communication skills, and moving on towards the next topic, that is effective discussion skills. All right. So, previously, we have learned about the discussion skills itself only. Okay, that in the discussions what should be done and what not should be done. So before proceeding towards this, there is one more portion left, that is don't portion. We have seen about the do's which we need to do regarding the discussion. We will be seeing now don't portions, that what should not be done during the discussion. So don't take offense if another disagrees with you. It means that अगर कोई आपके स्टेटमेंट से अग्री नहीं कर रहा हो, तो लाइक डोंट टेक इट एज एन ऑफेंस कि उसने कोई क्राइम कर दिया है. Okay, just take it as positively as possible. Putting forward different points of view is an important part of any discussion. अगर आप कोई भी पॉइंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हो, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो. तो दूसरे लोग जो होंगे आपके डिस्कशन के अंदर, वो आपके आइडिया से डिसएग्री कर सकते हैं. Never try to intimidate or insult another speaker or ridicule the contribution of other. इसका मतलब किसी को भी आप मतलब टॉर्चर नहीं कर सकते हो, या आप कोई स्पीकर को इंसल्ट नहीं कर सकते हो, या आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते हो जब वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सेशन के अंदर. Okay, don't use comments like that's stupid or you are wrong. Learn to disagree and argue appropriately. Okay, it means कि आप कोई ऐसी कमेंट्स यूज नहीं कर सकते हो जिससे सामने वाले को बुरा लग सके. आपको अगर किसी स्टेटमेंट से डिसएग्री करना हो, तो देयर इज अ वे टू डू, सो डू इट अप्रोप्रिएटली. मतलब कि आप उसको एक तरीके से करो. Take care to use a moderate tone of voice. If you sound angry or aggressive, others will not want to listen to you. If you are not a confident speaker, try to dominate the discussion. Pause to allow quieter students a chance to contribute. Avoid drawing too much on personal experience or anecdote. Although some tutors encourage students to reflect on their own experience, remember not to generalize too much. Don't interrupt or talk over another speaker. Let them finish their point before you start listening to other earns you the right to be heard. इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो वॉइस टोन होती है वो आपको काफी बेटर रखनी होगी, काफी लो साउंड करना है आपको. आप ज्यादा एग्रेसिव मतलब ज्यादा गुस्से में बात नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपको कोई नहीं सुनेगा. आपको एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना होगा. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्कशन को मतलब कोई और जगह लेके जाओ. आपको काफी क्वाइट तरीके से आपको कंट्रीब्यूट करना होगा. बहुत ज्यादा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं बोलना है. ओके, आपने क्या देखा है क्या नहीं देखा उस पे हमें कोई डिस्कशन नहीं करनी है. आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप इन शॉर्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट को पुट अप कर सको. ओके, अगर कोई स्पीकर बोल रहा है तो आप उसको बीच में इंटरप्ट मत करो. उनको अपना काम कंप्लीट कर लेने दो. जब आप अपना वो जब कंप्लीट कर ले बोलना, उसके बाद आप स्टार्टअप कर सकते हो. दैट इज वॉट वी डोंट. देर आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच वी नीड टू रिमेंबर, जो हमें नहीं करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज इफेक्टिव डिस्कशन स्किल्स. इफेक्टिव डिस्कशन नेसेसरी फॉर इफेक्टिव मीटिंग्स. जितना बेटर आपका डिस्कशन और आपका मीटिंग जाएगा, इट इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव टीम. अल्टीमेटली हमने जो पढ़ा उसी का ये है. सो वी विल नॉट गो इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. एवरी टीम मीटिंग शुड इंक्लूड एक्शन दैट facilitate the process of discussion. The following techniques are presented in the framework of team meetings, but they are useful whenever an effective discussion is important. Ask for clarifications if you are unclear about the topic being discussed, or the logic in other person's argument. Ask someone to define the purpose, focus, or limit of the discussion. Ask members to repeat ideas in different way. Okay, it means कि अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हो उनसे कि आप क्या कहना चाह रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया. So there is a way to ask. Okay, act as gatekeepers. Encourage more or less equal participation among group member by throttling dominators. Make openings for less aggressive members by asking their opinions directly or making them general रिक्वेस्ट फॉर इनपुट. इसका मतलब कि आपको सबको इन्वॉल्व करना है डिस्कशन के अंदर. उनसे भी पूछो कि क्या आप कुछ कहना चाहते हो, आपके हिसाब से आपकी क्या राय है क्या नहीं. लिसन, सुनना है अच्छे से. ओके, समराइज. समराइज का मतलब कि आप जो भी बोलना चाहते हो उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर कंप्लीट करना है इन शॉर्ट समरी.
कंटेंट डिसग्रेशन, मतलब डू नॉट परमिट ओवर लॉन्ग, मतलब बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं होना चाहिए, आपको टाइम मैनेज करके चलना है, डिस्कशन को एंड प्रॉपर्ली करना है ड्यूरिंग द टाइम। टेस्ट फॉर कंसेंसस, मतलब आपका जो भी पोजीशन है, व्हाट इज समराइज द ग्रुप पोजीशन ऑन एन इश्यू, स्टेट द डिसीजन, जो भी डिसीजन थे उसको आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, और चेक करना है कि क्या ये समरी जो हमने क्रिएट की उससे सब लोग एग्री कर रहे हैं नहीं। कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट द मीटिंग प्रोसेस, ओके, मतलब मीटिंग में क्या चल रहा है उसको ध्यान में रखना है, क्या डिस्कशन जो चल रहा है क्या वो क्वालिटी चल रहा है या नहीं, क्या हम डिस्कशन को कहीं और तो लेके नहीं जा रहे, तो वो हमें इवेल्युएट करने का मतलब कि उसके ऊपर ध्यान रखना कि डिस्कशन कहीं और ट्रैक चेंज करके ना चली जाए। Okay, next is leading a discussion. So what do you mean by leading a discussion? So you may be in a seminar group that require you to lead a group discussion or lead a discussion after an oral presentation. You can lead a discussion by introducing yourself and stating the purpose of discussion. Leading a discussion का मतलब अगर आप उस discussion को lead करने वाले हो, अगर आप वो discussion को startup देने वाले हो, आप presentation orally देने वाले हो, तो आप किस तरह से start करोगे? तो सबसे पहले आपको आपका introduction देना होगा और आपको discussion का एक purpose बताना होगा कि हम यहाँ पे क्यों gather हुए हैं। Ask questions to stimulate the discussion. आपको questions पूछने हैं discussion को आगे बढ़ाने के लिए। Make sure that no one dominates the discussion by inviting and encouraging contributions from all. ये ध्यान में रखना है कि कोई भी डिस्कशन के बीच में कुछ भी इन्वॉल्व ना हो ज्यादा से ज्यादा। Ensure only one member of the group speaks at a time, ensuring the discussion remain relevant and doesn't draft. Just a second. Summarize or rephrasing a speaker's point. Summarizing the discussion, it means you need to summarize it up. If you are going to be speaking up in front of everybody, you need to summarize everything. आपको ये ध्यान देना है कि डिस्कशन जो है वो प्रॉपर हो, कहीं और टॉपिक पे स्विच ओवर ना हो जाए, बिकॉज आप लीड करने वाले हो इस डिस्कशन के अंदर। नेक्स्ट इज अबाउट ग्रुप डिस्कशन, सो लेट्स गो विद ग्रुप डिस्कशन। Chairing a group discussion. When chairing a discussion group, you must communicate in a positive way to assist the speakers in accomplishing their objective. There are at least 4 leadership skills you can use to influence other people positively and help your group achieve its purpose. The skills include introducing the topic and purpose of discussion, yourself and other speaker, making sure all members have approximately the same time to speak, thanking group members for their contribution before being objective in summarizing the group discussion and achievement. इसका मतलब ये होता है कि जब हमें इन्वॉल्व होना है डिस्कशन के अंदर तो हम किस तरह से उस पर्टिकुलर ग्रुप डिस्कशन को हम कंसिडर करेंगे। तो आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है, आपका पर्पस क्या है वो बताना है, आपको अपने बारे में बताना है, स्पीकर के बारे में बताना है, फिर आपको ये ध्यान रखना है कि सबके पास इक्वल टाइम हो बोलने का। अगर हम किसी एक को चांस दे रहे हैं तो सारे जो प्रेजेंट होंगे उस पर्टिकुलर डिस्कशन में तो उनको सबको इक्वल कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए टाइमिंग को लेके कि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सके। दैट इज ऑल इम्पोर्टेंट विच वी हैव ऑलरेडी सीन। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डिस्कशन लीडर, अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है दैट इज लाइक हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिस्कशन, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्टार्ट एंड कंक्लूड द डिस्कशन पेइंग अटेंशन टू द टाइम लिमिट। ओके, मतलब टाइम देख के हमें स्टार्ट करना है और कंक्लूड कर ही देना है। गिव ऑल द ग्रुप मेंबर इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट, सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए पार्टिसिपेशन का। ओके, you may have to control members who take too much and to involve quite members. Okay, आपको ये कंट्रोल करना होगा कि कोई ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा, अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो आपको इनको कंट्रोल भी करना होगा। ओके, डिस्कशन जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट पे होना चाहिए, सब्जेक्ट के अलावा और किसी भी चीज पे नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि जब हम कोई डिस्कशन लेके बैठते हैं तो ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि हमारा डिस्कशन जो है वो डिबेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम हमारा ट्रैक चेंज ना करें। कीप द डिस्कशंस मूविंग, मूविंग मतलब कि डिस्कशन चलते रहना चाहिए। यू हैव टू बी पोलाइट, आपको टाइम जो दिया है उस पॉइंट पे कंप्लीट होना है, इसीलिए आप अपनी आइडियाज को रिपीट मत करो, यूजफुल बनाओ इसको। ओके, फिर सारे ग्रुप मेंबर्स को समझ में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डिस्कशन कर रहे हो वो यू हैव टू स्पीक स्लोली एंड लाउडली। इसका मतलब आप स्लोली स्लोली आप अपनी स्पीच दो और यू हैव टू बी लिटिल बिट लाउडर सो दैट सामने वाले को समझ में आए। और समराइजिंग तो हमने ऑलरेडी देखा था कि हाउ मच इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट।
moving on. Suggested vocabulary for leading a discussion. Now this is a little bit important. सबसे पहला सजेशंस यहाँ पे दिया है कि हम किस तरह से डिस्कशन को लीड कर सकते हैं, मतलब किस तरह के सेंटेंसेस हम लोग यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज गेटिंग स्टार्टेड. इज एवरीबडी रेडी टू बिगिन? ओके, are we ready to begin are some of the words. Second is bringing people into discussion. Okay, that is आप नाम लेके उनको बुला सकते हैं कि XYZ what do you think, XYZ do you have anything to add, इस तरह से. Then the third one is encouraging everyone to participate. What do you think about names इनके बारे में? Does anyone have anything to add? Would anyone like to comment on what particular person said? Okay, इस तरह से you can just lead a discussion. Clarify. Could you go over that again? I'm afraid we don't really understand what you said. I'm not sure we all understand what you mean. So इस तरह के अगर समझो कि I didn't get anything that the particular speaker was saying. So if I want to ask them about repeating it, so how can I ask? So could you go over it again? इस तरह से हम पूछ सकते हैं उनको. Controlling people who talk too much. So let's hear what some others I have to say. I think you have got a good point there. Why don't we find out what other people have to say? So this is how सामने वाले को ना बुरा लगेगा, ना they will be feeling insulted, and we can go ahead. Keeping discussions moving, perhaps we should go on to the next point. We have only few minutes left, so could we move on? Are there any more comments before we move on to the next point? इस तरह से हम उस discussion को आगे बढ़ा सकते हैं. अगर हमें डिस्कशन को उसी सब्जेक्ट पे रखना है, दैट्स इंटरेस्टिंग, बट इट रेजेस अ डिफरेंट पॉइंट. कुड वी कम बैक टू दैट लेटर? इस तरह से हम उन पर्टिकुलर पर्सन को बोल सकते हैं. रीचिंग एग्रीमेंट एंड समरिंग अप. डू वी एग्री दैट? सो टू सम अप, वी हैव डिसाइडेड. इस तरह के स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वोकैबुलरी फॉर लिसनिंग एक्टिवली. कैसे हम सुनेंगे? सो आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन. व्हाट डू यू मीन? आई एम नॉट श्योर दैट व्हाट यू मीन. सॉरी बट आई डोंट हैव अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन. इस तरह से हम पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज clarifying or restating. Okay, then paraphrasing. Okay, clarifying means again the same. Paraphrasing matlab particular person say, I believe that your point is, I think that you what feels that, isn't that right? Let me see if I understand you said. Checking for understanding. Do you see what I mean? Is that clear? As we ask you in during the classes. So these are some of the phrases. अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन सब चीजों की क्या जरूरत है. एग्जाम के अंदर दे आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि इफ आई वांट टू गिव ऑर्डर टू समबडी इन द कंपनी, तो मैं ऑर्डर किस तरह से दूंगी. तो इस तरह से आपको मेंशन करना होगा कि ऑर्डर हम किस तरह से दे सकते हो. तो सो फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट अप. तो योर इट इज. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन आए कि आपको किसी को ओपिनियन देना है, सो हाउ यू विल गिव एन ओपिनियन टू समबडी. सो यू विल बी राइटिंग इज opinions can be given in such a way that starting with the phrases like, I in my opinion, personally I think that, it seems to me, as far as I'm concerned. तो इस तरह से आपको ये phrases का उस particular short note के अंदर use करना होगा. Okay, now this is the vocabulary for exchanging opinions, opinion exchange करने के लिए. Okay, so this is also again simple, you just can read it out again. Okay, next is vocabulary for taking turn, getting attentions. So अगर आपको आपके टर्न के लिए आपको वेट करना, मतलब अगर आपको बीच में कुछ बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे. तो अगर आपको अटेंशन लेना हो सबका आपकी तरफ, सो मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मे आई से समथिंग हियर, मे आई मेक अ सजेशन, और आई हैव अ क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क. इस तरह से आप पूछ सकते हो. इफ यू वांट टू इंटरप्ट समबडी इन बिटवीन, एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग, सॉरी टू इंटरप्ट. इस तरह से आप बोल सकते हो. अगर आपको आपका टर्न रखना है तो एक्सक्यूज मी, आई वुड जस्ट लाइक टू फिनिश दिस पॉइंट. अगर कोई बीच में बोल रहा है और आपको कंटिन्यू करना है, सो आप इस तरह से पूछ सकते हो कि कुड आई प्लीज जस्ट फिनिश माय पॉइंट. अगर आपको कंटिन्यू करना है आफ्टर एन इंटरप्शन, तो एनी वे एज आई वाज सेइंग, इन एनी केस गोइंग बैक टू व्हाट आई से, इस तरह से आप यूज कर सकते हो. All right, so this was about the vocabulary turn. Then dealing with problem. तो इस तरह से आप statements use कर सकते हो. अगर आपको कोई प्रायोरिटी स्टेट करनी है तो बोल सकते हो. अगर आपको ओपिनियन पूछना है तो इस तरह के सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो. सो अगेन आई एम नॉट गोइंग हियर इन डिटेल, you have to learn up to here. I hope you people are clearing up your notes, you're writing it down, your notes are complete. Some of the people have sent it me up, and those who have not written, those who have not done the assignments, I request you all to kindly complete it, as on Saturday there will be just submission. I hope this session was useful to you and you understand what I explained. uh, I'll see you tomorrow again with the next topic of presentation tips for public speaking. Thank you. Have a nice day.